میں نہیں اس طرح کے محل لے سکتے. ان کا وزیر اعظم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ان علاقوں میں رہنے کا جدھر ہمارے یہاں وزراء اور ہمارے حکمران یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. لیکن قانون نہیں پکڑتا ان کو. اور پھر جو وسائل بھی ہیں, انگلش میڈیم, سب سے زیادہ نوکریاں ان کی, پریولیجز پوزیشن ان کے, عہدے ان کے, باقی عوام کے لیے اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے. ایک طبقاتی نظام جس میں ہمارا نیچے سے طبقہ اوپر ہی آ ہی نہیں سکتا. جتنی مرضی محنت کرے ان کے لیے ایک سیلنگ ہوگی کہ اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. بس یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے سارا پاکستان بنا ہوا ہے. پھر علاقے پاکستان کے جو تو حکمران کے قریب علاقہ ہے ادھر ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے, جتنا طاقتور ہے وہ پیسہ کھینچ رہا ہے, اور جو یہ علاقے دور ہیں پاور سینٹر سے وہ پیچھے رہ گئے. تو عثمان بزدار کو جب میں ہماری 2018 میں الیکشن جیتے تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کس طرح کا پنجاب چاہتا ہوں, اسی طرح کا میں وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں. میں وہ پنجاب چاہتا ہوں جدھر سب سے پہلے پنجاب کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے, کس کو تکلیف ہوگی, سمجھ ہوگی کہ یہ ان علاقوں کے اندر کتنے برے حالات ہیں, اور پھر کس میں درد ہوگی اپنی غریبوں کے لیے, کس میں یہ تکلیف ہوگی ان کی, کون سی ایمپتھی ہوگی, کون ان کے لیے سوچے گا. حالانکہ عثمان بزدار ہماری پارٹی میں بھی نہیں تھے, بعد میں آئے تھے. لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک اس آدمی کو لانا چاہتا ہوں جو میری سوچ جو ہے پنجاب کے اوپر, اس کے اوپر پوری طرح عمل کرے. یہ نہ ہو کہ وہ بھی یہاں سے پیسے چوری کر کر کے وہاں بڑے بڑے لندن کے فلیٹ لے اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اور ٹی ٹیز لگوائے یہاں. وہ آدمی مجھے چاہیے تھا جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا ہو, جس کو کوئی چھٹیوں کے لیے لندن نہ جانا پڑے, جن کی چھٹیاں بھی باہر, عید بھی باہر, بچے بھی باہر رہ رہے ہیں, اور بڑے بڑے بزنس ہیں باہر, پالیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں, سرمایہ کاری باہر کر رہے ہیں ملک سے, لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ, اپنا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں. میں چاہتا تھا وہ آدمی جو ہماری لوگوں کی دکھ اور درد میں شامل ہو, سمجھے, اور جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو. اور مجھے کبھی اس چیز میں شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ 5 سال کے بعد جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, اس کے بعد جب پنجاب کا ایویلیویشن ہوگی تو میں آپ کو یقین ابھی دلاتا ہوں کہ جو پنجاب میں نچلے لوگوں کو اوپر جس طرح لایا جائے گا, جو لایا جا رہا ہے, جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں, پنجاب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. میں نے جب عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا تو میں نے ان کو ٹیسٹ کیا. مجھے جب آتا تھا وہاں سے پرانا, جب سے مجھے یاد ہے, جی ٹی روڈ سے جب اوپر آ رہے ہوتے تھے, وہ راوی کا پل کراس کرتے تھے, تو جب داتا صاحب کے سامنے گزرتے تھے وہاں فٹ پاتھ کے اوپر رات کو لوگ لائنوں میں سوئے ہوئے ہوتے تھے, ان کے اوپر ڈیزل اور بڑی بڑی ٹرک رات کو آتے تھے, ان کی سارا دھواں آ رہا ہے ان کے اوپر, گندگی ہے ساری اوپر. کبھی کسی نے نہیں سوچا ان کا کہ یہ بیچارے یہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں. تو میں نے عثمان بزدار کو کہا, میں نے کہا وہ جو لوگ آپ نے دیکھے ہیں ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پناہ گاہ بنائیں, اور آپ یقین کریں کہ دنوں کے اندر اس نے پناہ گاہ بنائی, کیونکہ اس کے اندر درد تھی. اور پھر جو باقی کام ہو رہے ہیں پنجاب میں, ہیلتھ کارڈ ہے, سب ڈرتے ہیں جو ہیلتھ کارڈ میں اتنا پیسہ خرچ ہوگا. آپ یہ چیزیں جانتے ہیں کیونکہ میرا 15-20 سال مغرب میں گزرے ہیں. امیر ترین ملکوں میں ہیلتھ انشورنس نہیں دی جاتی مفت,
अमीर तरीन मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, इनके अंदर थोड़े लोगों की मुखालफत भी थी। वो डरे हुए थे कि नहीं जी हम सारे पंजाब को हेल्थ कार्ड कैसे देंगे, किधर से पैसा आएगा। ये मेरा ईमान है, जब आप अल्लाह का काम करते हैं पैसा खुद ही आ जाता है। आज उस्मान बुज़दार 60% है पंजाब पाकिस्तान का। ये उन्होंने पूरा जोर लगा रहे हैं कि सारे दिसंबर तक हर पंजाब के शहरी, हर खानदान के पास हेल्थ कार्ड हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, कि जब भी कोई खानदान में बीमार होता है तो किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सके। देखें, आपके घरों में अगर बीमारी कभी खुदा न खास्ता आई हो तो सबको पता होता है कि जब घर में बीमारी होती है किस तरह की बेबसी घर में होती है। अब वो सोचे कि जो गरीब घर में जब बीमारी होती है, एक बीमारी की बेबसी है, एक फिर उनके पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए। ये सोच के, ये देख के शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल मैंने बनाया था कि हमारे जैसे, मेरे घर में इतनी तकलीफ थी कैंसर की, जब वालदा को कैंसर हुई तो तब मैंने सोचा गरीब घरों में क्या हो रहा है, क्योंकि कैंसर का इलाज सबसे महंगा इलाज होता है, तो गरीब तो या तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कैंसर का इलाज। ये थी सोच कैंसर हॉस्पिटल के पीछे, और हेल्थ कार्ड के पीछे भी यही सोच है। पख्तूनख्वा ने किया, अब ये पंजाब दूसरा सूबा होगा कि साल के आखिर तक सारे पंजाब में हेल्थ कार्ड जाएगा। हर घर में, गरीब घर में उनको ये एतमाद होगा कि अगर कोई बीमारी होगी तो हमारे पास एक कार्ड है, हम जाके इलाज करवा सकें। और दूसरा, आज मुझे ये खुशी हुई कि किसान कार्ड, ये आज हमने लॉन्च किया किसान कार्ड, ये भी पंजाब ने पहल की है, अभी कहीं किसी सूबे में नहीं आया। हेल्थ कार्ड तो आ गया पख्तूनख्वा में, किसान कार्ड आज पंजाब ने पहल की है कि ये अब जाके किसानों की जो मदद होगी, डायरेक्ट उनको सब्सिडी दी जाएगी। छोटे 97% पाकिस्तान का किसान छोटा किसान है, जब उसकी आप मदद करेंगे तो मुल्क में पैदावार बढ़ेगी, मुल्क में खुशहाली आएगी। ये पहली दफा किसी ने पाकिस्तान के अंदर इस चीज का सोचा है। मैं मुबारक देता हूँ फिर आपको उस्मान बुज़दार कि आपकी गवर्नमेंट ये चीज सोची है। जब हम पख्तूनख्वा में आए तो मैं यही मुखालफिन जो आज कह रहे हैं कि जी किधर है रियासत मदीना, यही मुझे कहते रहे 5 साल बल्कि 4 साल कि जी किधर है नया पख्तूनख्वा, और सब ने मुझे कहा कि जी आप भूल जाए, पख्तूनख्वा के लोग सिर्फ एक दफा आपको मौका देते, दूसरा मौका नहीं देते, सारी जमातों को एक दफा के बाद फारिग कर देते हैं। तो मैंने ये 4 साल से ये सुना, और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया 2/3 अक्सरियत मिली पख्तूनख्वा में। क्यों मिली? यूएनडी की रिपोर्ट आ गई। अब यूएनडी की रिपोर्ट के मुताबिक जो सूबा वॉर ऑन टेरर की वजह से पीछे रह गया था 2013 में, जब हमारी हुकूमत आई 2013 से लेकर 2018 तक, जिस सूबे में सबसे तेजी से ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों के ऊपर खर्चा हुआ वो था, और जिस सूबे ने सबसे तेजी से गुर्बत कम की वो पख्तूनख्वा था, और जिस सूबे में अमीर और गरीब में फर्क कम हुआ वो पख्तूनख्वा था। इसलिए लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी। और इंशाअल्लाह 5 साल के बाद पंजाब में लोग ये याद रखेंगे, ये नहीं कि वो बड़े बड़े शहरों के अंदर अमीर लोग कैसे रह रहे हैं, वो ये देखेंगे कि पंजाब के गरीब लोगों की किसने मदद की। जो उस्मान बुज़दार का इलाका है वो सारे पंजाब में सबसे पसमानदा इलाका है डीजी खान का, और डीजी खान से भी, जो डीजी खान का कबायली इलाका है वो और भी पीछे है जिधर से वो उस्मान बुज़दार आता है। तो इसलिए जो आज इसने पैकेज अनाउंस किया आपके लिए, मुल्तान के लोगों के लिए, मुझे ये बड़ी खुशी है कि अब ये सोच आ गई है कि हमने सारे इलाके की डेवलपमेंट करनी है, सिर्फ एलीट के इलाकों की डेवलपमेंट नहीं करनी। लाहौर के अंदर भी डेवलपमेंट जो की गई थी वो उन इलाकों में थी जिधर सबसे ज्यादा तो जो
तख्ते लाहौर का रॉयल खानदान बासरा था, वो उन्होंने पब्लिक के इतना पैसा अपना बाहर रखा हुआ है और उसकी डेवलपमेंट अवाम के टैक्स के पैसे से की, सारा रायवट के इलाके में। ये अब हम सारे इलाकों में, और पाकिस्तान, मेरा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान के जो इलाके पीछे रह गए हैं, कबायली इलाका जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है, बलूचिस्तान के इलाके, अंदरून सिंध, ये जो साउथ पंजाब है, मेरी पूरी अब कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जो भी हमारे कदम उठाए गए, जो भी हम जिस तरह भी अपना बजट बनाए, हमारे कमजोर और गरीब इलाके ऊपर आए। अब मैं आता हूँ जिसके लिए ये हमारी साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट। देखिए, अब तो आज तो मुल्तान के सेक्रेटेरिएट का मैंने ओपनिंग की है, इंशाल्लाह बहावलपुर के सेक्रेटेरिएट के भी मैं अगली बारी ओपनिंग करूंगा। मेरा इस पे राय पहले दिन से ये थी कि साउथ पंजाब पीछे रह गया, क्योंकि मैंने ये सारे इलाके अपनी 15 साल तो हमारी पार्टी बड़ी छोटी सी पार्टी थी, बल्कि मुझे याद है मैंने शाह महमूद को भी दावत दी थी पार्टी में आने के लिए, लेकिन शाह साहब ने तब देखा कि अभी थोड़ा सा जरा ठहर जाओ, मैं तुम्हें देखूंगा क्या करते हो। तो सुने तो सारे पाकिस्तान में फिरा, कोई पाकिस्तान का इलाका नहीं जो मैंने 15 साल में नहीं गया। और साउथ पंजाब में गलती से जब दौरे 2 दफा किए तो वो जुलाई का महीना था और मैंने कभी इतनी गर्मी नहीं देखी जितनी साउथ पंजाब में है, और बिजली भी चली जाती थी तो रात को नींद भी नहीं आती थी क्योंकि लोड शेडिंग थी तब। लेकिन वाज़ेह था कि साउथ पंजाब पीछे रह गया, और अब स्टैटिस्टिक्स इस चीज की गवाही देती है कि 33% की आबादी साउथ पंजाब की, और सिर्फ जो बजट एलोकेशन थी वो 17% थी। हाशिम ने मुझे फिगर्स दी है कि 7 सालों में जो साउथ पंजाब का जो बजट था, जो होना चाहिए था, उसकी रीएलोकेशन होगी वापस। शहबाज शरीफ ने जिधर फैसला किया, क्योंकि वो तो एक आदमी फैसला करता था, तो उसमें साउथ पंजाब ने 7 सालों में 260 अरब रुपया का नुकसान हुआ। जो पैसा यहाँ खर्च होना चाहिए था वो कहीं और खर्च हुआ, साउथ पंजाब का पैसा। तो इसलिए साउथ पंजाब के लोगों की देखना पड़ेगा, ख्वाहिश है ये कि साउथ पंजाब का अलग सूबा बने, और यही आपके सामने है इस स्टैटिस्टिक्स कि 260 अरब रुपया जो 7 साल में साउथ पंजाब में खर्च होना चाहिए था वो कहीं और खर्च हुआ। और दूसरी चीज नौकरियां, कि 33% अगर सूबे का साइज है, उसकी आबादी है, तो उसको उसी के मुताबिक नौकरियां मिलनी चाहिए, उसका कोटा होना चाहिए। तो ये भी आज फैसला हो गया है कि साउथ पंजाब को उसके साइज, उसकी आबादी के साइज के मुताबिक उसको नौकरियों के अंदर कोटा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि साउथ पंजाब के लोगों के लिए आसानी, वहाँ रहीम यार खान से, भावलनगर से, भावलपुर से या मुल्तान से लाहौर जाना ज्यादा बेहतर है कि इधर आपके मसले मसाइल का हल हो, आपके फैसले हों। तो ये हर तरह ये सेक्रेटेरिएट एक शुरुआत है, और इंशाल्लाह पहला मौके पे ये हम जाके इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाएंगे कि साउथ पंजाब का अलहदा सूबा बने, और इंशाल्लाह वो अब बनेगा। मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूं जो अभी हाल ही में बड़े अफसोसनाक वाक़े हुए कि फ्रांस के अंदर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई और कोई खाके छपे, तो उसके ऊपर एक जमात ने आके
हुकूमत की कन पट्टी पर बंदूक रख के और कहा कि जी फ्रांस के एम्बेसडर को वापस, कि हम सब, मैं तो किसी को नहीं जानता जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क भी करता। अगर कोई नहीं, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आपको अब सही माने में आपके दिल में ईमान आ सकता ही नहीं जब तक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल में नहीं बसते, आप उनसे प्यार नहीं करते। कौन ज्यादा करता है, कौन कम करता है, ये तो अल्लाह ही जानता है। नियतों के राज तो अल्लाह के पास है सिर्फ। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि कौन सा हमें अब सबको, अगर हम उनसे इश्क करते हैं और हमें तकलीफ होती है कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है, तो इसका तरीका क्या है कि हम उनको रोक सकें? बाहर के मुल्क के लोग हैं, हम उनको कैसे रोकें? दो तरीके सामने आ गए आपके। एक तरीका TLP का है कि जनाब यहाँ इस्लामाबाद पे हल्ला बोल दो, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करो कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज दे। ये उनका तरीका है। मुजाहरे करो, तोड़ फोड़ करो पाकिस्तान में। तो क्या इससे ये रुक जाएंगे फ्रांस और यूरोप में जो लोग और अमेरिका में जो ये उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, क्या ये रुक जाएंगे? और एक मेरा तरीका है और मेरी गवर्नमेंट का तरीका है। मकसद एक ही है, हमें तकलीफ होती है ये जब भी कोई उनकी बेहुरमती करता है, हम सबको तकलीफ होती है। तरीका क्या है इसको खत्म करने का? TLP का तरीका आपके सामने आ गया। मेरे पाकिस्तानियों, मैं मगरिब को सबसे बेहतर जानता हूं। कोई मगरिब को इस तरह अंदर नहीं समझता जो मैं समझता हूं। जिंदगी के मेरे 20 साल गुजरे हैं वहां, प्रोफेशनल क्रिकेटर होके यूनिवर्सिटी में वहां गया। मैं उनकी सोच को जानता हूं। ये जो TLP कर रही है कि जी हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजो और नहीं तो ये कर देंगे और तोड़ फोड़ हो जाएगी, मैं आपको लिख के देता हूं, 100 साल आप ये कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। बल्कि वो और खड़े हो जाएंगे कि जी ये तो कौम बड़ी तंग नजर है, हम तो आज़ादी राय के ऊपर, हमारी आज़ादी राय के ऊपर ये अटैक कर रही है। तो वो तो और खड़े हो जाएंगे। वो तो समझेंगे कि हम आज़ादी राय के ऊपर स्टैंड लेके खड़े हैं। उसको तो वो दीन समझते हैं। एक मेरा तरीका है और इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा कि मेरा तरीका होगा जो कामयाब होगा। और वो तरीका ये है कि मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट से हम बात करें, एक एक मुल्क से, जो हम कर रहे हैं। अभी शाह महमूद ने 4 दुनिया की फॉरेन मिनिस्टर से बात की और वो सब मुत्तफिक है हमारे साथ। सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट को हम इकट्ठा करेंगे, उनसे हम एक मिलके एक अप्रोच, जो उस अप्रोच के जरिए हम जाएंगे यूरोपियन यूनियन में और यूनाइटेड नेशंस में, इसका आगाज हम कर चुके हैं। उनको हम कहेंगे कि देखें, आज़ादी राय के नाम पे हम 1.25 अरब मुसलमानों को आप तकलीफ नहीं दे सकते। यहूदियों को आप तकलीफ देते हुए सोच भी नहीं सकते। उनका जो हॉलोकॉस्ट, जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके ऊपर कोई भी मनफी बात कर सके, क्योंकि यहूदी इकट्ठे हैं। 4 यूरोपियन मुल्कों में जेलों में डाल देते हैं कि अगर हॉलोकॉस्ट के खिलाफ आप कोई भी मनफी बात करें। तो क्या हम 50 मुसलमान मुल्क मिलके, क्या हम उनको ये नहीं कह सकते और समझा नहीं सकते कि आज़ादी राय आप हर चीज़ में इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप गुस्ताखी नहीं कर सकते।
اور پھر اگر آپ کریں گے تو پھر جب 50 مسلمان ملک ایک لائے عمل طے کریں گے کہ ہم آپ کی ٹریڈ بوائک آؤٹ کریں گے, ہم آپ کی چیزیں نہیں خریدیں گے, اس کا امپیکٹ پڑے گا, تب ہم کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ میری حکومت اس راستے پہ لگی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ ہمارا 5 سال پورے ہونے سے پہلے میں اپنی قوم کو خوشخبری دوں گا کہ سارے انہی ممالک کے اندر ہمارا پیغام جا چکا ہوگا, اور ان کے اندر بھی جس طرح یہودیوں کی ان کو تکلیف نہیں دیتے, ان کے دلوں کو تکلیف نہیں دیتے, ہمارے لیے بھی وہ بھی کبھی بھی ان کے ملکوں کے اندر اس طرح کی چیز نہیں ہوگی, اور وہ میرے طریقے سے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. میں آخر میں پھر آج ایک بڑا خوشائن دن ہے, یہ شروعات ہے ساؤتھ پنجاب صوبے کی, شروع ہو رہا ہے سیکٹریٹ سے, سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ ہے, باولپور میں بھی کھلے گا, ملتان میں بھی کھلے گا, اور اس کے بعد جیسے جیسے لوگوں کے یہ ٹرانزیشن ہوگی ایک دن ایک پورا آپ کو اپنا ساؤتھ پنجاب کا صوبہ ملے گا. بہت بہت شکریہ.